Hello everyone, I CS Nitin Patidar welcome you in the lecture series of Accountancy Initiative for Class 12 Commerce students. This is the second lecture for the Accounting for Partnership Firm Fundamentals. In the first lecture, we will learn about the basic concepts of partnership firm. Means we know what is a partnership, what is different between partnership and the sole proprietor, what are the essential features of a partnership, what kind of nature it has, what are the duties and we can say the rights of a partner has. Then we discussed about the type of a partners and the important concept we learned in the last lecture, that a partnership deed, what it contains, what is the importance, and the major thing is that what happened when a partnership firm doesn't have a partnership deed. So, and the last concept, in very important concept, that is the although important in this second lecture and in upcoming lecture, that what is appropriation and what is charge. Total depend upon what is the actual expenses, or we can say that the outsiders expenses or insiders expenses, that we call charge and appropriation, with some exception. Why I am telling some exception, I will clear that in coming lecture. So we just start with this second chapter. You are I am think so you are actual waiting for that second lecture of that accounting purpose. So in this accounting lecture, we just clear our fundamentals regarding the partnership firm accounting, as well as we knows few things. What are the things we will discuss in this chapter? So what we will learn in this chapter, the important thing is that we learn the distribution of profit amongst partner. Means the main thing is that I just create a scenario between a sole proprietor and a partnership. As in a 11th class, in a final accounts, you prepare the final accounts by trial balance, you prepare the trading account, you get the gross profit. Gross profit means what? Revenue minus direct expenses. Revenue minus direct expenses. So you will get the mota gross profit. Then you start with your profit and loss account. In a profit and loss account, you deduct the indirect expenses from that gross profit and you will get the net profit. I can say that the pure profit, अशुद्ध लाभ जिसको बोला जाता है. So that net profit you will consider as a profit of that proprietor, of that owner of the business. So you just take that profit from the P&L, you put it in the balance sheet and you add in a capital. Means if I invest 1 lakh and I earned, my net profit is a 10,000. So what is my capital right now at the end? 1 lakh 10,000. The profit will be added in my capital. Okay. So this is the mota funda of your final accounts in 11th class. So in a 12th class, the base thing is that you will understand the concept of accounting. You will know how to prepare the balance sheet, how to prepare P&L and trading account. You know about this. So in this 12th class, it is very easy to prepare that final accounts because concept will never change. General entries are same, your ledger postings are same, your trading and P&L are same, your balance sheet are same. So what is changed? The change is the scenario of the business, because
In that sole proprietorship firm there is a single person, single owner, so whole profit or a loss will be bear by that particular person or the owner. In this scenario, in this partnership firm, we already learned in the definition there must be a two partner, minimum two partner, maximum will be 50. So minimum will be the two partner. So you cannot give the whole profit to a particular partner, or you cannot decide the ratio by himself. That ratio will be depends upon that partnership firm's deed or their partner themselves. So one thing you have to do, that you have to make that separate account. Separate account for what? Separate account for distribution of a profit. बिकॉज आप कैपिटल में लेके जाएंगे, वो 10,000 का प्रॉफिट है, अब 1 लाख कैपिटल लगाया, 50,000 ए ने लगाया, बी ने लगाया 50,000, इससे आपने 10,000 रुपए नेट प्रॉफिट निकाला है, नेट प्रॉफिट निकाला है, उसको नेट प्रॉफिट को सीधा आप पी&एल से उठा के वहां लेके गए हो आप कैपिटल में, और कैपिटल में ऐड कर दिया। भैया बताना तो पड़ेगा किसका है, पहला चीज। दूसरा चीज, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म बहुत बार ऐसा करती है कि ऐसा नहीं करती कि सीधा वो बोल देती है कि चलो ऐसा करो पार्टनर में बांट दो। बहुत बार ऐसा होता है, लाइक आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ा होगा, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में बहुत सारे एक्टिव पार्टनर होते हैं, बहुत सारे स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, डॉर्मेंट जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत सारी कैटेगरी होती है। जब पार्टनर्स की कैटेगरी है तो बेटा प्रॉफिट क्या सबको बराबर बांट दें क्या? नहीं यार, कोई पार्टनर ऐसा है जो जी जान से मेहनत कर रहा है, चाहे कैपिटल दोनों ने बराबर लगाई है, एक पार्टनर जो ध्यान नहीं देता, जस्ट पैसा लगाया है, दूसरा पार्टनर पूरा बिजनेस संभाल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि नहीं यार उसको मुनाफा जो है, प्रॉफिट जो है थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए, एग्जैक्टली मिलना चाहिए? तो वो कहां शो हो रहा होगा? बट ऑब्वियसली उन्होंने डीड बनाई होगी तो डीड में शो हो रहा होगा। तो अब आपको इस प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा बकायदा, पहला चीज। दूसरा चीज, कई बार ऐसा होता है कि चलो ठीक है, पार्टनर्स बोलते हैं कि ठीक है पी&एल हम जो है प्रॉफिट और लॉस वो तो इक्वल बांट देंगे, पर ए इस बिजनेस को संभाल रहा है, ए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिजनेस को निभा रहा है, तो ए बोलता है यार मुझे है ना प्रॉफिट से ज्यादा मेरे को सैलरी चाहिए, क्योंकि भैया तू तो कहीं और जॉब में तेरा अर्निंग कर लेता है, तू यहां बिजनेस पे टाइम नहीं देता। आई पुट माई वर्क, आई पुट माई टाइम एंड आई माई पुट माई हार्ड वर्क इन दैट बिजनेस, सो मुझे इससे सैलरी चाहिए। तो ठीक है भैया, आप सैलरी ले लेना। तो ए क्या बोलेगा? चलो मुझे सैलरी देना। तो वो सैलरी क्या है? वो सैलरी भी तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड थिंग, मे बी पॉसिबल बी बोलता अच्छा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तू सैलरी ले रहा है, पर क्लाइंट में जो तेरे पास भेज रहा हूं, जितने क्लाइंट इस बिजनेस में आ रहे हैं मेरे थ्रू जो आ रहे हैं, मैंने कैपिटल लगाया, एक बात है प्रॉफिट हो रहा है, शेयर करेंगे बिल्कुल, पर जो आ रहे हैं उस पर मुझे ऐसा करना है, तू 10% कमीशन दे देना। क्या दे देना? कमीशन मुझे दे देना। जी बोलता है ठीक है कमीशन दे देना। अब कमीशन भी क्या है बेटा? प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सारे तरीकों से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इन सारे तरीकों को हम सीधा बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे, इन सारे तरीकों को हम एक एक साइड में एक अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और बैलेंस शीट के पहले। समझ आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और बैलेंस शीट के पहले, मतलब बीच में ये अकाउंट बनेगा, और इस अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। किसके बीच में कर रहे हैं? पार्टनर्स के बीच में। तो पहला चीज, तो जो भी पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा वो प्रॉफिट रहेगा, पहला। दूसरा, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पार्टनर्स के बीच में होगा, कोई भी बाहर का आदमी इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्ट लेने नहीं आएगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूं फॉर एग्जाम्पल, एक क्रेडिटर है जिसको पैसा देना बाकी रह गया था, नेट प्रॉफिट निकाल लिया, हम भूल गए, 10,000 रुपए उसको मोटा मोटा तौर पे चलो 500 हमारे एग्जांपल में ले लेते हैं, 500 रुपये उसको देना था। 500 रुपये हम लोग देना भूल गए, हम लोगों ने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। क्या कर लिया? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब जब नेट प्रॉफिट आया 10,000, हम लोगों ने इसमें से सैलरी कमीशन देना चालू किया, डिस्ट्रीब्यूशन देना चालू किया, क्रेडिटर आ गया बीच में, वो छल गया, अरे सर वो 500 रुपए, हाँ यार वो ले जाया तेरे और ये क्लियर कर, वो 500 ले गया, पिछले साल में उसको दे दुआ के खत्म कर दिया, चलो ठीक है। अब वो बोलेगा यार इस 500 का क्या करें? तो क्या इस पी&एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिटर को डाल दे? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नेट प्रॉफिट जो आया है आपका, उस नेट प्रॉफिट को 10,000 में 500 माइनस करके 9,500 करना पड़ेगा, और दैट 9,500 विल बी योर नेट प्रॉफिट। सो वन थिंग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे हो तो पार्टनर्स के बीच में होगा, कोई थर्ड बंदा नहीं आएगा।
नेट प्रॉफिट जो होगा वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद निकलना चाहिए। अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स को बांटना है उसके अलावा वाला शो हो रहा है तो उसको पहले देके पहले एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालो, दैट इज नॉट एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालो और उस नेट प्रॉफिट को क्या करोगे बेटा, पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है। थर्ड थिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग, appropriation item and charge item। appropriation item and charge item में बेटा बहुत अच्छा डिफरेंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैं आपको जल्दी से इसका डिस्कशन बता देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रिवाइज करवा देता हूं। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटा नेट प्रॉफिट को पार्टनरशिप में क्या करना बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करना। बट चार्ज का मतलब होता है बेटा जो रेवेन्यू आपने कमाया है, जो रेवेन्यू, अब मैं प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रेवेन्यू आपने जो कमाया उस रेवेन्यू को बांटना या उस रेवेन्यू को देना क्या कहलाएगा बेटा, चार्ज कहलाएगा। और उस डिडक्ट अमाउंट के बाद मतलब रेवेन्यू माइनस दैट एक्सपेंसेस आइदर डायरेक्ट और आइदर इनडायरेक्ट, दोनों को माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, चार्ज आइटम। सेकंड थिंग, चार्ज हमेशा, चार्ज हमेशा जरूरी नहीं है, चार्ज हमेशा आपको देना पड़ेगा, मतलब जो एक्सपेंसेस है वो हमेशा आपको देने पड़ेंगे चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। बट एप्रोप्रिएशन उसी केस में दिया जाएगा जिस केस में क्या हो रहा हो बेटा, फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर का सैलरी है, मैनेजर का सैलरी हम लोगों ने डिसाइड किया भैया कि ऐसा करना, मैनेजर 5,000 रुपए सैलरी तू ले लेना साल भर का, गरीब मैनेजर है, 5,000 रुपए तू सैलरी ले लेना साल भर का। मैनेजर खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सालों से अच्छी फर्म चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक साल ऐसा आया कि फर्म को लॉस होने चालू हो गए, लॉस हुए, साल भर में लॉस हो गए। अब मैनेजर को सैलरी देने से क्या आप मना कर दोगे कि भैया लॉस हो गया यार, तेरे को सैलरी कैसे दे यार, बता अब तू तू खुद देख। मैनेजर क्या बोलेगा, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता आपको प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो, मैं वर्क कर रहा हूं आपके यहाँ एज ए एम्प्लॉय, तो आपको क्या देना पड़ेगा, मुझे सैलरी तो देना ही पड़ेगा। बट उसी साल लॉस हुआ और जो ए को सैलरी देना थी, अब ए अड़ गया, बोले यार मेरी सैलरी, मैंने काम किया। बी बोलेगा नहीं यार मेरा भी तो कमीशन है, मैंने भी तो क्लाइंट भेजे 2-3, अब एक्सपेंसेस इतने थे, लॉस हो गया, मैं क्या करूं। तो वो दोनों लड़ेंगे, पर उन दोनों को एक बात समझनी पड़ेगी कि भैया दे आर द ओनर्स ऑफ दैट बिजनेस। लाइक अ सोल प्रोप्राइटर को रात करो, सोल प्रोप्राइटर को लॉस होता था तो हम कैपिटल कम कर देते थे उसकी, तो यहां पे भी तो यही होगा, भैया आप लोग दोनों ही ओनर हो, लॉस हो रहा है, कहां से सैलरी दे दें, कहां से दे दें भैया, जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नेट प्रॉफिट ही नहीं है, नेट लॉस शो हो रहा है, तो भैया कहां से आपको दे देंगे प्रॉफिट। समझ पा रहे हो। तो अप्रोप्रिएशन कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट होगा। चार्ज कब दिया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो चार्ज को देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारे चार्जेस हैं मींस एक्सपेंसेस हैं, वो आप लोगों ने जब पीएनएल बनाया था तो पीएनएल के डेबिट साइड में होते थे, डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जो हमारे यहाँ पे अप्रोप्रिएशन करेंगे हम लोग वो भी डेबिट साइड ही होंगे, सबसे अच्छी बात ये भी डेबिट साइड ही होंगे, बट बेटा ये कौन से में जाएंगे, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएंगे, दैट्स इट, इतना सा डिफरेंस है। अब पहला चीज, चार्जेस कब देंगे, चार्जेस अप्रोप्रिएशन के पहले देंगे। अप्रोप्रिएशन कब होगा, नेट प्रॉफिट के बाद, मतलब चार्जेस पे करने के बाद दिया जाए। अब एक थिंग जो मैंने वहां पे प्रीवियसली आपको बताया था कि जितने भी चार्जेस हैं या अप्रोप्रिएशन है वो सारे ओनरशिप पे या फिर मैं बोल सकता हूं इनसाइडर और आउटसाइडर पे डिपेंड करते हैं, बट विथ सर्टेन कंडीशंस बोल सकते हैं, एक्सेप्शन बोल सकते हैं, बेटर वर्ड। सो हियर अब आपको लग रहा होगा ना कि पार्टनर्स को जितनी भी चीजें देनी है, मतलब पार्टनर्स को जो भी पैसा देंगे भैया वो तो अप्रोप्रिएशन के नाम से आना चाहिए। आई एग्री, सारी चीजें, मतलब पार्टनर्स को अब क्या क्या चीजें देखो किस किस नाम से आ सकता है, जरा सुन लेना और नोट डाउन कर लेना, आप नोट्स बना लेना जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला तो हम क्या देंगे पार्टनर को, हम लोग सैलरी दे सकते हैं, हम लोग कमीशन दे सकते हैं पार्टनर को, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट दे सकते हैं उसकी कैपिटल पे, अप्रोप्रिएशन का पार्ट है इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट दे सकते हैं कैपिटल पे। उसके बाद आप लोग पार्टनर से, अब देने की बात नहीं लेने की बात है, ड्रॉइंग अगर पार्टनर से किया है तो इंटरेस्ट ले सकते हैं पार्टनर से, ये भी अप्रोप्रिएशन का पार्ट बिल्कुल लेंगे।
ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स बता रहा हूं बेटा मैं आपको, ये सारी चीजें हम लोग क्या हो सकता है अप्रोप्रिएशन में जा सकते हैं। बट एक चीज ध्यान से सुनना, रेंट अगर पार्टनर्स को देना है, रेंट कैसे देना है, जैसे पार्टनर की एक बिल्डिंग है जिसपे आपका ऑफिस चल रहा है, एक ऑफिस चल रहा है जो ओनरशिप पार्टनर की है। पार्टनर ने कैपिटल तो लगाया है, पर पार्टनर ने ये नहीं बोला कि इस बिल्डिंग का रेंट मैं कैपिटल में ऐड कर रहा हूं, नहीं। तो वो जो रेंट देना है पार्टनर को बेटा, वो एज एन आउटसाइडर लाइबिलिटी मानेंगे, और वो कहां जाएगा बेटा, वो चार्ज आइटम में जाएगा। कहां नहीं जाएगा, अप्रोप्रिएशन आइटम में नहीं जाने वाला। तो कहां जाएगा बेटा, चार्ज आइटम में जाएगा। सेकंड थिंग, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, अब क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर की कि लोन भी दे जब वो कैपिटल दे रहा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम उस लोन को जो पार्टनर को, चाहे दिया पार्टनर ने है, पर पार्टनर को जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लोन पे जो पार्टनर ने दिया है, तो उसको आउटसाइडर मानेंगे, और वो क्या मानेंगे बेटा, चार्ज आइटम मानेंगे। तो कुछ चीजें क्लियर हुई, सब चीज जो पार्टनर को देनी है वो क्या नहीं है, अप्रोप्रिएशन नहीं, एक्सेप्शन कुछ है जिसको हम लोगों ने अप्रोप्रिएशन ना ट्रीट करके क्या ट्रीट किया बेटा, चार्ज ट्रीट किया है। बट उसके बाद इन दो आइटम्स के बाद में अगर कुछ आइटम रहते हैं तो वो सारे अप्रोप्रिएशन है और इन नाम से शो होंगे। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया कि सैलरी अगर आप देना भूल गए हो तो नेट प्रॉफिट में आप एडजस्ट कर लो। मान लो रेंट पार्टनर को देना रह गया था, आपने सोचा कि चलो ये तो अप्रोप्रिएशन है वहां से दे देंगे, नहीं, नेट प्रॉफिट गलत आ रहा है, आप पहले रेंट दो पार्टनर को उसके प्रीमाइसेस का, फिर आप नेट प्रॉफिट निकालो, फिर उससे सारा डिस्ट्रीब्यूशन आप करो। ठीक है, तो ये सारे पास्ट एडजस्टमेंट रहेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग यहां पे लर्न करेंगे मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। तो यहां से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कैपिटल कितनी बची है पार्टनर्स के हाथ में। ये कब बनेगा, ये जब आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा। एंड नेक्स्ट, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है जो वैसे तो होना नहीं चाहिए बट होती है, और क्वेश्चन पूछ लेता है इस पे कभी कभी, कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मतलब क्या है, मान लो पार्टनर है, दोनों पार्टनर ने, अब जैसे इन प्रीवियस एग्जांपल 1 लाख कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर ने मान लो बोला था, एक ने बोला सैलरी देना है, एक ने बोला कि चलो ऐसा करना मुझे कमीशन देना। एक एग्जांपल प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा थोरोली समझ लो। तो उसने बोला था कि मुझे सैलरी चाहिए और मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। वहां पे कंडीशन डाली कि इन एवरी सिचुएशन आइदर प्रॉफिट और आइदर इन लॉस, ये चीज तो आपको देना पड़ेगी, सैलरी भी और कमीशन भी। चाहे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मत करो, लॉस हो रहा है ना, प्रॉफिट मत दो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो देनी पड़ेगी। तो अब एक चीज तो अगर भावुकता में ना जाएं और समझे इस चीज को, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया जब प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कैसे दे दे, लॉस आ गया है पर नहीं वो मान नहीं रहे हैं, तो फिर मानेंगे कैसे, नहीं उनको मनाना पड़ेगा, और मनाने के लिए क्या करेंगे, उनको पहले तो बांट देंगे। पहले कैसे बांटेंगे, जितनी सैलरी बन रही है उतनी सैलरी दे दो ए को, जितना कमीशन बन रहा है उतना कमीशन दे दो बी को। बट अब वो लॉस है, वो लॉस बढ़ गया होगा आपके हिसाब से, क्योंकि देखो पहले मान लो 10,000 प्रॉफिट में आके 5,000 का लॉस था, माइनस 5,000 है, 1,000 हम लोगों ने इधर क्या दे दिया है, 1,000 हम लोगों ने इधर दे दिया उसको सैलरी, मान लो 500 का कमीशन, 1,500 दे दिया, 5,000 का लॉस ऑलरेडी था, हम लोगों ने 1,500 और इनको दे दिया, मतलब फॉर्म में अब लॉस कितना आ रहा है बेटा, 6,500। बेटा ये कौन बियर कर रहा होगा, ये उन पार्टनर को ही बियर करना है। अब पर इसमें देखो एक थोड़ा सा फायदा क्या हो जाता है, इसमें ये हो जाता है कि सैलरी और कमीशन जो है वो तो एक्चुअल पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट जब इन लॉस की बात आएगी तो लॉस वो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांटेंगे जो उनने डिसाइड किया था। थोड़ा सा कंसेप्चुअल थिंग है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो यू विल गेट अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम, ये तो हमने सीखने की चीज बोली, आज मैं बस इस पूरे चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सिखाऊंगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो अप्रोप्रिएशन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, व्हाट इज अप्रोप्रिएशन।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेट प्रॉफिट, मैंने हाईलाइट किया है किसको बांटना है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट अगर वो शुद्ध लाभ है तो ही बांटेंगे, अशुद्ध लाभ है, इनप्योर प्रॉफिट है, मान लो उनमें से कोई ऐसा खर्चा बाकी है जो चार्ज का पार्ट है, तो उसको पहले माइनस कर दो, उससे नेट प्रॉफिट निकालो और उस नेट प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये किस साइड जाएंगे बेटा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन साइड जाएंगे वो जाएंगे आपके डेबिट साइड। डेबिट साइड, डेबिट साइड किसके, कौन से अकाउंट के बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट थिंग, डिडक्शन ऑफ लॉस या एक्सपेंसेस चार्जेस। तो हम लोगों को पता है बेटा चार्जेस जो होते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लॉस या एक्सपेंसेस जितने भी रहते हैं वो कहां जाते हैं, पी एंड एल के डेबिट साइड जाते हैं। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएशन क्या होता है बेटा, तो अप्रोप्रिएशन डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। इंपॉर्टेंट थिंग है ये चीज कि अप्रोप्रिएशन डिपेंड करता है एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, डिपेंड करता है, एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, डिपेंड करता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी समझ लिया है, आगे भी इसको मैं जल्दी से समझा दूंगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दी, अप्रोप्रिएशन शुड नॉट बी मोर देन नेट प्रॉफिट। एक चीज तो मैंने समझाई, लॉस होगा तो अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे, नेट प्रॉफिट से ज्यादा अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, नेट प्रॉफिट से ज्यादा अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। प्रोसेस समझ लेते हैं जल्दी से, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की क्या होगा प्रोसेस। सबसे पहले तो फाइंड आउट द रियल नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस विल बी चार्जेस। ठीक है, जब आपने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, अच्छा उसने नेट प्रॉफिट सीधा दिया और ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं दिया तो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट ले लोगे। और अगर वो बोल गया कि भैया ये तो देना था और आपको समझ में आ गया कि भैया ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, चार्ज का, तो आप वापस से नेट प्रॉफिट, भैया इसको सुधारो, पहले नेट प्रॉफिट को चेंज करो, नेट प्रॉफिट निकालो और नेट प्रॉफिट से फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट है ही नहीं। सेकंड थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। अब आपको नेट प्रॉफिट एक्चुअल मिल चुका है तो आप क्या करोगे, बांट दो। नेक्स्ट, हाईलाइट किया हुआ है मैंने, स्टार मार्क किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड करता है, एग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस रेंट टू अ पार्टनर। मतलब ये जो तीन चार चीजें हैं, ये चीजें आती है चार्ज का पार्ट। मतलब अगर ये चीजें दी हुई है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया है या रेंट दिया हुआ है, पार्टनर ने दिया हुआ है, ये तो आपको किस में से माइनस करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में से, और क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, ये चार्ज का पार्ट है। नेक्स्ट, अगर उसने ड्राइंग का इंटरेस्ट पूछ लिया, कैपिटल का इंटरेस्ट पूछ लिया, या सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो बेटा इसका कैलकुलेशन करना है। सैलरी का कैलकुलेशन अगर मंथ वाइज दिया है तो ईयरली कर लेंगे, कमीशन का परसेंटेज में दिया है तो हम लोग कमीशन का किस में दिया है वो निकाल लेंगे, ड्राइंग का दिया हुआ है तो ड्राइंग के अमाउंट से हम लोग परसेंटेज वाइज निकाल लेंगे, कैपिटल दिया हुआ है तो कितना कैपिटल लगाया था उसका परसेंट निकाल लेंगे, उस पर इंटरेस्ट जितना लगेगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको किस में से माइनस करना है, नेट प्रॉफिट में से। तो एक चीज, नेट प्रॉफिट के पहले क्या माइनस होगा, नेट प्रॉफिट के पहले माइनस होगा ये थी, और नेट प्रॉफिट के बाद क्या माइनस होगा, अप्रोप्रिएशन। ठीक है, जब आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो आप क्या बना दोगे, एक नेट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट निकलेगा, जो ट्रांसफर होगा, जो अमाउंट ट्रांसफर होगा, वो कहां जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में पूछा है तो हम लोग बनाएंगे, नहीं पूछा है तो हम लोग नहीं बनाएंगे। इसके भी क्या तरीके हैं वो लोग हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझें। अब इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन विथ और विदाउट एग्रीमेंट। सबसे बड़ा समस्या की जड़ है कि एग्रीमेंट है या नहीं। सॉरी, एग्रीमेंट अगर है तो कुछ नहीं देखना, एग्रीमेंट के पॉइंट्स देखना। मतलब एग्रीमेंट में अगर उसने बोल रहा है सैलरी बांटेंगे, बिल्कुल देंगे साहब। उसने बोला है कमीशन देंगे, बिल्कुल देंगे साहब। उसने बोला है अरे सर वो हम लोगों को ऐसा करना था, इंटरेस्ट भी चाहिए था कैपिटल पे, बिल्कुल दे देंगे। ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी लेना, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो बिल्कुल उससे भी ले लेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो नॉर्म्स में दी होगी और हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो मैंने बोला था अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, एग्रीमेंट नहीं है तो हम लोग किसकी सुनेंगे, हम लोग सुनेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगेन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सुनेंगे, और वो बोलता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तीन से चार नहीं, तीन चीजें। पहला चीज, प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल। मतलब दो पार्टनर है तो 50-50% कर देंगे, तीन है तो इक्वल कर देंगे, 1/3 1/3 1/3 33 33 33% कर देंगे।
4 है तो 1/4 1/4 मतलब 25%, 25%, 25%, 25% सबको बांट दे। पहला चीज मतलब प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इक्वल। सेकंड थिंग, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे, पर इंटरेस्ट किस रेट से देंगे बेटा, इंटरेस्ट हम उस रेट से देंगे जो कि कौन बता रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो रेट है बेटा अभी 6% पर एनम। यहां पर एनम नहीं डाला है मैंने, इसको लिख देना पर एनम, ठीक है, कर देना इसको पर एनम। किससे बांटेंगे हम लोग, 6% पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ भी बोल दे, जब उसने स्टार्टिंग में बोल दिया भैया एग्रीमेंट नहीं है, क्या बोला, एग्रीमेंट है ही नहीं, तो जब एग्रीमेंट है ही नहीं भैया तो वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी नाम देके लालच दे दे आपको कि भैया हम तो नहीं बांट रहे सैलरी, हम तो कमीशन दे रहे हैं, नहीं बांट रहे हम तो सैलरी कमीशन, हम तो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे, आपको कुछ भी देना नहीं है, ना ही कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ना ही ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लेना है, ना ही आपको सैलरी देनी है, ना ही कमीशन देना है, ना ही रेम्यूनरेशन देना है, कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना आपको, ठीक है, समझ में आ गई है ना। कुछ चीजें जो सुन लो आप जल्दी से तो आपके लिए अच्छा है, जैसे कि लोन बाय रिलेटिव इज नॉट अ लोन फ्रॉम अ पार्टनर, मतलब अगर रिलेटिव ने लोन दिया है तो उसको पार्टनर का लोन नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उसको जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा आता है कि ए के फादर इन लॉ ने फर्म में लोन दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं है, किसने लोन दिया है, ए के फादर इन लॉ ने फर्म में लोन दिया है, कोई एग्रीमेंट नहीं, अब इंटरेस्ट उसको देना नहीं देना भैया वो उनकी कंडीशन है। यहां पे जो ये 6% वाला क्राइटेरिया है ये मात्र पार्टनर के लिए लगेगा, रिलेटिव्स के लिए नहीं लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, दूसरा चीज, जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे प्रॉफिट और लॉस की, तो बेटा ये प्रॉफिट और लॉस में वो आपको थोड़ा सा घुमाने का कोशिश कर सकता है कि बोलेगा अरे यार एक तो वहां पे ए तो एक्टिव पार्टनर है हमारे केस में, बी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, तो अब बताओ ए को ज्यादा मिलना चाहिए ना, भैया ज्यादा मिलना चाहिए था तो आपको एग्रीमेंट बनाना चाहिए था, आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया, अब हम तो बराबर बांटेंगे, क्योंकि हमको तो किसने बोला है, लॉ ने, एक्ट ने बोला है क्या करना है, बराबर बांटना है। इसका मतलब क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो प्रॉफिट जो है पार्टनर में आइदर वो एक्टिव होगा या स्लीपिंग होगा, चाहे उसने जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है, किसी ने जैसे कि हमारे केस में 1 लाख का कैपिटल 50,000 लगाया था, मान लो 1 लाख के कैपिटल में ए ने लगाया हुआ था 80,000 और बी ने लगाया हुआ था 20,000, अब दो सिनेरियो, ए ने लगाया हुआ है 80,000, बी ने लगा हुआ है 20,000, बी ने कम कैपिटल लगा, ए एक्टिव पार्टनर है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, एग्रीमेंट नहीं बनाया, फिर भी दोनों को इक्वल बांटेंगे, फिर भी यूं नहीं बोलेंगे भैया इसने ज्यादा कैपिटल लगाया इसने कम कैपिटल लगाया, ये नहीं बोलेंगे ये एक्टिव पार्टनर है स्लीपिंग पार्टनर, कोई मतलब नहीं। अगर आपको इस चीज का ध्यान रखना था, आपको क्या बनाना था, एग्रीमेंट बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट, ये इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, फॉर्मेट देख लेते हैं जल्दी से इस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लो और कॉपी में बना लेना और समझ लेना इस चीज को कि क्या है ना, इस चीज को जल्दी से समझ लेना। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सीधा फॉर द ईयर एंडेड जो हम P&L बनाते हैं उसके बाद बनेगा ये उसी साल। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आने वाला है तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ये वो प्रॉफिट है जो किसके लिए आया है, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया है। डिस्ट्रीब्यूशन मींस ये प्रॉफिट है जो आपको डिडक्ट करना है, बट इस प्रॉफिट के नीचे लिखना नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएशन। सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है बेटा, सारे चार्जेस इसमें से माइनस होने चाहिए, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट ऑन मैनेजर या पार्टनर ऑन दिस अकाउंट माइनस करना, बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन, मतलब इसमें से एक चीज और यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इन अ केस इफ ही सेज कि यार हम लोगों ने ऐसा करना था, नेट प्रॉफिट आया ना, वो नेट प्रॉफिट सैलरी पार्टनर को सैलरी देने के बाद निकाल दिया, मतलब मान लो वो 10,000 था, 10,000 में से पार्टनर को सैलरी दे दी उसने 1,000 और बोल रहा है ये नेट प्रॉफिट है 10,000, तो आप बोलोगे बुद्धू हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना था, तेको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना था, तू ज्यादा समझदार बना है, अब तूने नेट प्रॉफिट निकाला है, नेट प्रॉफिट गलत है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो नेट प्रॉफिट से होता है ना, तूने सैलरी पहले ही दे दी होशियार बन के, तो हम क्या करेंगे उस सैलरी को ऐड करेंगे, 11,000 नेट प्रॉफिट निकालेंगे और नेट प्रॉफिट से 1,000 माइनस करेंगे, वो सैलरी का दे देंगे।
अब यहाँ पे आप बोलोगे सर एक ही बात है, दूसरी बात ये कि जब पार्टनर को कमीशन देना होगा परसेंटेज पे तो वो नेट प्रॉफिट पे देना होता है, और यहां जब नेट प्रॉफिट गलत है 10,000 का तो आप कमीशन भी गलत निकालोगे और आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है बेटा, अगर वो अप्रोप्रिएशन कर देता है तो उस अप्रोप्रिएशन को जोड़ दो, और अगर वो चार्जेस को माइनस करना भूल जाता है या माइनस नहीं करता है तो उसको माइनस करो, पर हमें ये जो प्रॉफिट है बेटा ये एक्चुअल प्रॉफिट चाहिएगा। ठीक है, यहां पे ये एक्चुअल प्रॉफिट कहां से आया, पी&एल से आया, आपने यहां मेंशन कर दिया। अब आप डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर, अगर उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बकायदा दे देंगे, ए को भी दे देंगे और बी को भी दे देंगे। किस साइड जा रहा है एक चीज और बता दूं, ये डेबिट साइड जा रहा है। किस साइड जा रहा है, डेबिट साइड जा रहा है। नेक्स्ट, पार्टनर को सैलरी देना है, बिल्कुल दे देंगे, पार्टनर की सैलरी दे देंगे। उसके बाद बोलेगा किसी पार्टनर को कैपिटल देना है, कैपिटल कमीशन देना है, कमीशन दे देंगे। वो बोलेगा कुछ पैसा रिजर्व में रखना है, बिल्कुल रिजर्व में डाल देंगे हम आके यहाँ पे। उसके बाद वो बोलेगा ऐसा करना, इंटरेस्ट ले लेना ड्राइंग से, जिन जिन पार्टनर ने भी पैसा निकाला है यहाँ से बिल्कुल उनसे इंटरेस्ट ले लेंगे। अब इन सब चीजों को डिडक्ट करने के बाद में जो भी पैसा बचेगा, जो भी पैसा यहां बचेगा वो पैसा रहेगा डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको हम लोगों को बांटना है। ये प्रॉफिट जो जाएगा वो ए के कैपिटल में जाएगा और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब यहां पे दो चीजें दिख रही होगी, ए का कैपिटल अकाउंट और ए का करंट अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट और बी का करंट अकाउंट। तो बेटा ये मेथड होती है आपकी कैपिटल अकाउंट बनाने की। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं आप जो आगे रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो चीजें इसमें डाली है पी&एल अप्रोप्रिएशन में, इस पी&एल अप्रोप्रिएशन में इन चीजों के अलावा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, नोट देख लो, इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से, पर एक बार पढ़ लो। आफ्टर प्रोवाइडिंग चार्जेस, चार्जेस मींस वो एक्सपेंसेस, वी रीचेक द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल सैलरी कमीशन टू एम्प्लॉई या मैनेजर, रेंट टू आउटसाइडर, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आउटसाइडर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, ये सारे हम लोगों ने समझ लिए हैं। ये सब चीजें माइनस करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट आएगा वही क्या है, आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट। सेकंड थिंग, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी ऑफ अ कमीशन टू अ पार्टनर, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो होप आपको ये पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप के अंदर जो एप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉफिट है ये इजीली समझ आ गया। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समाप्त करेंगे अब इस लेक्चर को। इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म है। सबसे पहले आपको दिख गया यहाँ पे क्या है, विदाउट एग्रीमेंट। जल्दी से अपना नोटबुक निकाल लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर लीजिए। मैं रीड करता हूं तब तक में आप इसको सॉल्व कर लेना फटाफट से। छोटा सा क्वेश्चन, A and B form a partnership without an agreement. At the end of the year, they prepare a profit and loss appropriation. क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स नीचे दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग आइटम देख लेते हैं क्या क्या बनाया है। अब देखो इन्होंने समझदारी क्या की, अच्छी बात है, इन्होंने समझदारी रखी। इन्होंने पार्टनरशिप बनाई, बिना एग्रीमेंट की बनाई, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने थोड़ा सा होशियारी दिखा के पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया, और इन्होंने पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हमको दे दिया। समझदार बने और क्या दिया हमको, पी&एल अप्रोप्रिएशन दे दिया। बोले कि साहब ये पी&एल अप्रोप्रिएशन। अब जो ये पी&एल अप्रोप्रिएशन है आपको इसको एग्जैक्ट बनाना है एज पर दी नॉर्म्स जो हम लोगों ने पढ़ा। तो अब पी&एल अप्रोप्रिएशन आपको बनाना है, तो पहली चीज इन्होंने जो बनाया है वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है, नेट प्रॉफिट निकाला है 20,000 का। इस 20,000 में से इन्होंने सैलरी भी दी है, 2,000 की ए को, 3,000 की बी को। सैलरी 5,000 इन्होंने दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है बरखुरदार ने 6%, 2400 और 1200। अब कैपिटल बताई नहीं है पर इन्होंने इसको डिडक्ट कर दिया है। हम लोग कैपिटल 6% के हिसाब से बता सकते हैं कितना कैपिटल रहा होगा। कमीशन दिया है इन्होंने ए को 1400 का, 1400 का। एंड उधर जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है वो ड्राइंग पे 500 और 300 का इंटरेस्ट इन्होंने लिया है 800 का। तो टोटल क्रेडिट साइड देखे तो 20,800 होता है। जो बचता है सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद वो 10,800 है। इन्होंने इस 10,800 जो बचा हुआ था उसको प्रॉफिट में दे दिया है। ए को दे दिया 7,200 और बी को दे दिया 3,600। मैच कर गया 20,800 का। जल्दी से आपके पास 2 मिनट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 2 मिनट के बाद मैं इसका आंसर करवाऊंगा।
एक बार अपना दिमाग लगा लीजिए और फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इजी है बहुत। नॉर्म्स ध्यान रखना कि आपको नॉर्म्स क्या पता है। आपको पता है पार्टनरशिप पे बिना एग्रीमेंट किए, और आपको पता है कि गलतियां क्या की है, उस गलती को सुधारना है, एरर को रेक्टिफाई करना है, और इस P&L अप्रोप्रिएशन को वापस से बनाना है। जल्दी से बना लो। बनाया? समझ में आया क्या गलती की है इन्होंने? चलो इसकी मिस्टेक्स देखते हैं जल्दी से। इधर मिस्टेक्स देखते हैं। सबसे पहले तो एग्रीमेंट नहीं है, तो हमारी शर्तों को देख लेते हैं। एग्रीमेंट होता है तो क्या होता है और एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या होता है। जल्दी से देख लें शर्तों को। यहां आ जाता है। एग्रीमेंट नहीं है, ये वाली शर्त, तो पहला चीज तो भैया P&L डिस्ट्रीब्यूट इक्वल करना है। दूसरी कंडीशन है 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है अगर लोन दिया हो पार्टनर ने तो। और तीसरी चीज है किसी भी नाम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है कुछ भी आइटम को, किसी भी नाम से। अब इस चीज में वर्खुरदार ने क्या लोन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज हमारा कि हमें P&L इक्वल बांटना है, ठीक है। और तीसरा चीज किसी भी नाम से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। तो भाई साहब ने तो तहलका मचा दिया, सैलरी दे दी जो कि क्या नहीं देना थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जो कि क्या नहीं देना थी। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, और उनको लगता है कहीं ना कहीं 6% था, और कहीं ना कहीं ऐसा था कि अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो 6% दे सकते हैं, और एग्रीमेंट नहीं हो 6% दिया है और सही किया है। बेटा वो क्या है, वो लोन पे इंटरेस्ट है, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है। बरखुरदार ने ए को क्या दे दिया, कमीशन दे दिया जो कि क्या करना था, नहीं देना था। ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले लिया जो कि क्या करना था, नहीं लेना था। और दूसरा चीज प्रॉफिट ट्रांसफर किया है ए को और बी को। यहां पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और यहां पे बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, यहां पे बच्चे दिमाग लगाते हैं सर ठीक है ना, प्रॉफिट दिया है 7200 और 3600, इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं और इसी रेशियो में हम इस प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो तुम ज्यादा समझदार हो क्या लॉ से? जब लॉ बोल रहा है कि तुमको प्रॉफिट किसमें बांटना है, इक्वल बांटना है, तो बेटा इनने क्या इक्वल बांटा है क्या प्रॉफिट को? नहीं, मतलब गलत किया, और गलत पे भी भयंकर गलत किया। कम से कम प्रॉफिट तो बराबर बांट लेते हैं। समझ में आ रही चीजें? तो एक चीज बस इसमें सही की है इसने, और वो चीज की है कि इसने नेट प्रॉफिट लिखा है और क्रेडिट साइड सही लिखा है। अब आपको शायद आंसर समझ में आ गया होगा कि क्या करना था। आपको कुछ नहीं, ये जो नेट प्रॉफिट है इस नेट प्रॉफिट को यहां लिखना था, और इस नेट प्रॉफिट को सीधा उठा के क्या करना था, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। और किसमें करना था बेटा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना था। मतलब इसको आपको 1/2 और 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना था। समझ में आई या नहीं आई? मतलब 50% ए का और 50% बी का, 10,000 इधर और 10,000 बी को मिल जाते, और ये कहां चला जाता? उधर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता। आंसर देख लो फटाफट से। प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, ए को दे दिया 10,000, बी को दे दिया 10,000। क्वेश्चन खत्म। इजी था ना? कैसा लग रहा है 11th में कितने टफ टफ क्वेश्चन थे, यहाँ कितने कितने इजी इजी है। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्चुअली चलते जाएंगे, कंसेप्चुअली पढ़ते जाएंगे। आप घर पे रहिए, हेल्दी रहिए, बाहर मत निकलिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी में लेके आने वाला हूं फर्दर प्रैक्टिकल्स के साथ में। आई होप ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होंगे आगे आने वाले हम लोग लेक्चर्स में समझेंगे। तो इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।